So let's start. Sentence is a complete idea and there are many ways of understanding it. It has a subject and verb. It has a subject and predicate. It has phrases. Every word in a sentence acts as a part of speech. However, in this context, we are concerned with the subject and verb that are found in a sentence. We need to find subject of a sentence not only for the objectives that we are going to attempt, but also for effectively reading a paragraph so that we may attempt different techniques like précis and comprehension. So let's start with subject. The most effective way of understanding a sentence is in terms of subject and verb. But what is a subject? Subject is a word or word group about whom the statement is made. Every sentence is about a subject. Subject can be a word, a noun, or a pronoun, or a word group. I have just read the definition of a subject, but when we, the non-native English readers and writers, read a grammatical definition, we feel awkward. We don't understand it at once, so we need to simplify these grammatical concepts. Let me explain this definition in simpler words. The subject of a sentence is a person or a thing doing the action or being described. तो जुमले में हमेशा ये नहीं होता कि कोई शख्स काम ही अंजाम दे, बल्कि बहुत दफा उस शख्स को या उस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है. लेकिन पहले हम बात करेंगे एक्शन की. द कैट एट द माउस. इस जुमले के अंदर एक काम किया गया है और वो काम है एट. अब अगर हम जुमले को देखें, मानी के एतबार से देखें, तो ये जुमला कैट के बारे में है और कैट हमारा सब्जेक्ट है. लेकिन अगर हम इसकी ग्रामेटिकल डाइसेक्शन करें तो उसका तरीका ये है कि हम वर्ब से पहले हु या व्हाट का इजाफा करें. सो व्हाट एट द माउस? द आंसर इज द कैट. व्हाट की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए. अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट एट द माउस, द आंसर इज द कैट. द कैट इज योर सब्जेक्ट. बट इफ आई से द कैट एट व्हाट, the answer is the mouse, which is object of the sentence. So what की placement को हमें देखना पड़ता है जब भी हम किसी जुमले में subject, verb या object की बात करते हैं. हमारा जो subject है वो noun हो सकता है, pronoun हो सकता है, noun phrase हो सकती है. Noun is the most important part of speech. Noun can be subject, object, object of preposition, complement after linking verb, object complement after transitive verb, or an adjective in the sentence. It can perform all these roles, but in this particular context, in this video, we are only concerned with the role of noun as a subject in a sentence. So let's look at some examples so that we can understand how subject works in a sentence. Pakistan is a nuclear power. अब तरीका ये है कि हम जुमले में वर्ब से पहले हु या व्हाट का इजाफा करें ताकि हम सब्जेक्ट को ढूंढ सकें. लेकिन क्योंकि अगर मैं कहूं हु इज अ न्यूक्लियर पावर या मैं कहूं व्हाट इज अ न्यूक्लियर पावर तो मेरा जुमला सही नहीं बनेगा. सो मैं यहाँ पे विच का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी. विच इज अ न्यूक्लियर पावर? द आंसर इज पाकिस्तान. पाकिस्तान इज आवर सब्जेक्ट. A dispute over the state of Kashmir is ongoing. What is ongoing? A dispute over the state of Kashmir. अब आप अगर इन दोनों जुमलों में फर्क देखें तो पाकिस्तान एक लफ्ज था और सब्जेक्ट का काम कर रहा था. जब हमारा सब्जेक्ट एक लफ्ज का हो तो हम कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट. A dispute over the state of Kashmir. ये है कंप्लीट सब्जेक्ट बिकॉज इट इज मोर देन वन वर्ड. अब इस कंप्लीट सब्जेक्ट में से हमें वो एक लफ्ज ढूंढना है जिसकी बात हो रही है और वो है डिस्प्यूट. अब मैंने कैसे हिसाब लगाया कि डिस्प्यूट की बात हो रही है? आप देखिए, ओवर द स्टेट ऑफ कश्मीर. ओवर इज अ प्रेपोजिशन विच इज इंट्रोड्यूसिंग द स्टेट ऑफ कश्मीर. सो हम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा रहे हैं अपने नाउन के साथ और बात हो रही है डिस्प्यूट की. तो डिस्प्यूट हमारा सब्जेक्ट है. तीसरा जुमला देखते हैं. In response to Indian nuclear weapons testing,
Pakistan conducted its own test in 1998. अब यहां पे आप देखें, in response to Indian nuclear weapons testing, in response to, हमारे preposition जो है वो Indian nuclear weapons testing को introduce करवा रही है जुमले के अंदर. तो हमारा जुमला शुरू हो रहा है prepositional phrase के साथ और हमारा जो subject है वो इसके बाद आया. So Pakistan is our simple subject about which this statement is being made. The world's second largest economy is semi-industrialized and mainly based on manufacturing and agriculture. What is semi-industrialized and mainly based on manufacturing and agriculture? The world's 22nd largest economy. अब आप देखें the world's, इसका मतलब है of the world. So the world's की बात नहीं हो रही, बात हो रही है 22nd largest economy की. और 22nd largest हमारे पास adjectives हैं. तो जुमला जो होता है वो adjective के बारे में नहीं होता, वो होता है noun के बारे में, which is economy. So the world's 22nd largest economy is complete subject and economy is our simple subject. Let's look at another example. The partition of British India into Pakistan and India was never satisfactorily resolved. What was never satisfactorily resolved? The partition of British India into Pakistan and India. Again, we see that two prepositional phrases are used within the subject. तो हमारा complete subject क्या है? The partition of British India into Pakistan and India. So of British India एक prepositional phrase है, into Pakistan and India is another prepositional phrase. और बात हम कर रहे हैं partition की. So partition is our simple subject. The partition of British India into Pakistan and India is complete subject. और हम देखते हैं कि जब multiple choice questions आते हैं तो उसके अंदर जो आपसे सब्जेक्ट पूछा जा रहा होता है वो सिंपल सब्जेक्ट है. तो अगर इसी जुमले के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो एक ऑप्शन होगा ब्रिटिश इंडिया, एक होगा पाकिस्तान एंड इंडिया, एक होगा पार्टीशन और एक ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव. तो आप पार्टीशन को चूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट. द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैज वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. अब आप फिर देखें, द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात हो रही है और इस कंप्लीट सब्जेक्ट में से अगर हम देखें तो कंट्री की बात हो रही है. कंट्री इज आवर सिंपल सब्जेक्ट. Pakistan, a country located in the northwest of the Indian subcontinent in South Asia, unveiled its new political map in 2020. अब अगर आप उन जुमलों पे देखें जो मैंने अब तक आपके साथ पढ़े हैं तो उनमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है. अब ये जुमला सबसे मुश्किल है. मुश्किल आइडिया को समझने की वजह से नहीं है, मुश्किल है स्ट्रक्चर के एतबार से. अब आप देखें कि हम बात करें अनवेल्ड, सो विच या अब व्हाट अनवेल्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप. सो हम बात करें पाकिस्तान की. अब पाकिस्तान और अनवेल्ड के दरमियान में हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया. अ कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया. सो ये हमारी वो नॉन इसेंशियल या नॉन रिस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान को मॉडिफाई कर रही है. अगर आपसे कंप्लीट सब्जेक्ट पूछा जाता तो पाकिस्तान से लेके साउथ एशिया तक कंप्लीट सब्जेक्ट था, लेकिन इसमें सिंपल सब्जेक्ट है पाकिस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो पाकिस्तान अनवेल्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप इन 2020. सो पाकिस्तान सिंपल सब्जेक्ट है, अनवेल्ड आपका वर्ब है. क्या अनवेल किया? पाकिस्तान अनवेल्ड व्हाट? तो जवाब है इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप विच इज योर ऑब्जेक्ट. तो हमारे पास किसी भी जुमले को समझने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम उसमें सब्जेक्ट को ढूंढ लें. और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हमें कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग पेपर के अंदर आ जाएं, डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर आए, तो उनके अंदर सब्जेक्ट पे सवाल जरूर होता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सवाल जरूर होता है. बल्कि करेक्शन के जितने सवाल होते हैं उनमें से 80% वो सवाल हैं जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हैं. और ये आप तभी चेक कर सकते हैं जब आपको जुमले में सब्जेक्ट मिलेगा. सो हमने अभी तक जो जुमले देखे उनमें हम बात कर रहे थे कि कोई हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और हम अपने अल्फाज जो थे हम सब्जेक्ट को ढूंढ रहे थे. अच्छा, हमने कुछ जुमले देखे और जब मैंने आपसे सब्जेक्ट की बात शुरू की तो मैंने आपसे कहा कि जुमले के अंदर एक्शन परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा जुमले में एक्शन ही परफॉर्म हो. तो पीछे भी कुछ एग्जाम्पल्स गुजरी हैं, लेकिन अब मैंने खास तौर पे वो जुमले कुछ अलहदा किए जिनमें हम अपने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो आलिया इज एंग्री. हु इज एंग्री? आलिया.
اب اس جملے میں عالیہ نے کوئی کام نہیں کیا, عالیہ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. He is busy. In this sentence, he is not performing an action. He کو ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں, تو he ہمارا پروناؤن ہے جو سبجیکٹ کا کام کر رہا ہے. The cat is dead. تو یا تو ہم کہتے the cat has died in an accident, تو ہم نے ایسا جملہ تو نہیں بنایا, ہم نے حالت بیان کی ہے, تو ہم نے کہا the cat is dead. سو کیٹ کی بات کر رہے ہیں, کیٹ ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. تو کسی بھی جملے کے اندر سبجیکٹ جو ہے اس سے ہم کوئی کام بھی کروا سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں, اور سبجیکٹ جو ہے وہ کسی بھی جملے کے اندر ناؤن ہو سکتا ہے. I hope your questions regarding subject in a sentence are answered. If there is anything that you want to ask, feel free to leave a comment. Do watch the second video in which I'm going to grammatically dissect a paragraph which has been taken from a newspaper so that we can apply all this concept that we have learned about subject. Thank you for listening to me.